Hey, what is up, everyone? Welcome to yet another episode of Talks That Go Viral. And today we have a very special guest with us, Mr. Mahesh Patel. He is the founder and the CEO of Amazon India Profit. Mr. Mahesh Patel, welcome to the show. Hi, thank you, Viral. Thank you for the introduction. So, Mahesh, right now, where exactly are you? I've heard that you are yet not in the place where you were. You are stuck somewhere due to the No, lockdown. I'm in Rajasthan in my hometown, at my home only, but not in Mumbai home. Okay, so you basically stay in Mumbai, but you have been quarantined, or sorry, you have been locked down in Rajasthan. In Rajasthan. Okay. Actually, I was here with my family Mm-hmm. for a trip. Then this lockdown thing happened, and so we stayed here only. Okay. So Nice, let's see nice. for how many days I have to stay here. Okay. So you're planning come back to Mumbai soon now, right? Like once the trains and everything gets Yeah, normalized. yeah. Once everything gets normal, I'll be back. Okay. सो महेश जी आप थोड़ा बहुत मुझे बताइए एग्जैक्टली आपके इंट्रो के बारे में कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो और आपने ये Hmm. सॉफ्टवेयर क्यों बनाया व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सॉफ्टवेयर ऑल अबाउट श्योर श्योर ओके सो थोड़ा सा पीछे से जाते कि लाइक आई यूज्ड टू वर्क मैं पहले एक एमएनसी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली ओके ओके एंड like left my job because I wanted to start my something of my own. Okay, so I had no idea initially that what should I start with, but like 2017 end I left my job. So, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा ई कॉमर्स वगैरह देखते क्या चालू है फिर थोड़ा ई कॉमर्स में लाइक मेरे खुद के ब्रांड्स भी हैं जो अमेजोन पे है फ्लिपकार्ट पे है ओके मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया थोड़ा देखा सीखा अंडरस्टूड कि क्या होता है अमेजोन पे सेल करना फ्लिपकार्ट पे सेल करना लाइक ऑनलाइन सेलिंग ऑल इन ऑल ओके so after that my main thing is software actually I ओके love making softwares and this is why I created this software. Uh, at that time, I wanted to like track some things like my keywords, my products, how the performance of my products is happening on the Amazon because every day on daily basis it is not possible to track manually track everything. Okay, so that's how I started with this software thing. Okay, and at that time there were softwares who were doing this but no one was particularly focusing on Amazon India actually okay ओके because you will see many keyword research tools and everything but no one is particularly focusing on Amazon India because Amazon India is still a very growing market it is very it's still at a nascent stage actually अभी तक ये इतना बड़ा नहीं हुआ है जिसका जितना ये हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा स्कोप अभी बचा है okay राइट so I thought कि let's start focusing on Amazon India first so मेरा जो टूल है उसके नाम में भी आपने देख लिया कि AMZ India Profit राइट so राइट I whenever see someone name of this they will know that it is for Amazon India okay राइट so that is my target audience ओके and that's how I created and started running this सो आपने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो आपको क्या लगता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली कौन यूज कर सकता है और किस चीज के लिए यूज करता है जनरली अ, जब मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो इसका स्टार्ट अमेजोन सेलर से ही हुआ है लाइक अमेजोन सेलर ही इसके मेन यूजर्स हैं अगर आप नए अमेजोन सेलर हो जो अमेजोन पे सेल भी करना चाहते हो या सेल स्टार्ट कर रहे हो या इन द मिडल ऑफ समथिंग हो या इवन आप पुराने सेलर हो बट कैसा है कि आपको नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस करने राइट ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उसके बाद आप और प्रोडक्ट्स लॉन्चेस करोगे जब आप और लॉन्चेस करोगे तब भी आपको ये सॉफ्टवेयर काम में आएगा अगर आप न्यू हो एकदम न्यू हो जिसको आपको कुछ आइडिया नहीं कि क्या करना है मुझे आगे कैसे मेरा सेल्स बढ़ाना है राइट उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर है ओके तो लाइक मेन टारगेट ऑडियंस यही है sellers Amazon sellers or whoever want to enter into Amazon selling ओके और ये इसमें एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि जितने भी सेलर्स ऑलमोस्ट अभी अगर देखोगे तो अराउंड 10,000 प्लस तो सेलर्स है इंडिया में जो अमेजोन पे स्पेसिफिकली बेचते हैं
सो आपको क्या लगता है कि सारे सेलर्स ये प्रॉपरली हम्म, इसको एसईओ, Amazon का प्रॉपर एल्गोरिदम स्टडी करके सेल करते हैं कि ऐसे ही सेल करते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद उनको लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग चलता नहीं है और वो छोड़ देते हैं? कुछ आपने नहीं कुछ नहीं करते, बस बस लिटरली वही, एक्चुअली लिटरली वही हो रहा है। कोई भी कुछ रिसर्च नहीं करता, लाइक क्योंकि हम लोग कैसे कि हम लोग धंधे वाले लोग हैं, लाइक बिजनेसमैन है हम लोग, अपने राइट। पुराने बिजनेसमैन है। हमारे डैड लोग सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं कि कुछ भी बेचो मार्केट में वो बिक जाता है, राइट, स्टार्ट। अमेजोन पे वैसा नहीं है। अमेजोन पे आप ऐसे सिर्फ आपने प्रोडक्ट डाल दिया है, उसकी एक फोटो डाल दी मोबाइल से खींच के, नहीं चलने वाला। आपने डाल दिया कि मेरा एबीसी प्रोडक्ट है और लोग उसको आके खरीद लेंगे, ऐसा होने ही नहीं वाला है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो। आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है जिसके साथ मुझे कॉम्पीट करना है आगे जाके। कि ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बस रख दिया और सेल आ जाएंगे कस्टमर्स आपका खरीद के लेके चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपको कस्टमर सर्विस देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक, अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो ये सब। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो ये नहीं चलने वाला है आपके लिए। Okay. तो आपको क्या लगता है बेसिकली अगर कोई भी एक नया सेलर है तो वो एग्जैक्टली किस मतलब आपके टूल्स में से वो एग्जैक्टली कैसे मतलब उसको ऑप्टिमाइज करे, जैसे आपका टूल्स उसको क्या एग्जैक्टली हेल्प करेगा सेल करने के लिए? उसको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट पता है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कीवर्ड रिसर्च से, कि ओके। मेरा जो प्रोडक्ट है उसको अमेजोन पे जब कस्टमर आता है तो वो सर्च कैसे कर रहा है। ओके, मेरे प्रोडक्ट का नाम मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो बेच रहा हूँ, रबर बैंड ही बेच रहा हूँ, रबर बैंड। लेकिन वो रबर बैंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, सिर्फ एक चीज में यूज नहीं होता। तो लोग शायद उनके स्पेसिफिक यूज केस के लिए वो रबर बैंड सर्च कर रहे हैं। जैसे वो रबर बैंड हेयर रबर बैंड सर्च कर रहे हैं, या वो रबर बैंड किसी बॉक्स को लगाने के लिए बड़ा वाला रबर बैंड यूज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट के एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं और यूजेस के हिसाब से कस्टमर सर्च करता है। कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वही कीवर्ड है आपके लिए। सो ओके, सो और वो बेसिकली कीवर्ड आप आपको सो आपको बेसिक आपको प्रोडक्ट पता है। राइट, सो हम्म, बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर उनको ये सब सर्च टर्म्स देता है जो आपके हिसाब से सर्च एल्गोरिदम टर्म्स से। देता है। राइट, तो वो जो सर्च टर्म्स बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं राइट, कि कस्टमर कैसे टाइप करता है और क्या ढूंढता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट अपीयर हो। राइट कैसे टाइप कर रहा है और क्या ढूंढ रहा है, राइट। राइट राइट। ओके, सो ये एक टूल से आप बेसिकली एक सेलर स्टार्ट कर सकता है कि कीवर्ड्स पहले एक्सट्रैक्ट करके कि कौन से कीवर्ड उसके मोस्ट पहले कीवर्ड्स रेलेवेंट है। एक्सट्रैक्ट करे। ओके हम्म, ओके। राइट। पहले कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने चाहिए कि कौन से रिलेवेंट कीवर्ड्स है। वो कीवर्ड्स यूज करके फिर उसको अपना जो लिस्टिंग है वो बनाना चाहिए। लिस्टिंग में भी बहुत से लोग टाइटल और बुलेट पॉइंट्स पे तो ध्यान देते हैं, बट डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि वो बुलेट या तो क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट कॉपी पेस्ट कर डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बुलेट डिस्क्रिप्शन को आपको पूरी तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको 2000 कैरेक्टर्स मिलते हैं। वो आपको पूरी तरह से यूज करना चाहिए। जितने भी आपके सेकेंडरी और जो इम्पोर्टेंट वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल के ट्राई कीजिए, और प्रॉपर कॉपी बनाइए कि मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि मतलब कोई पढ़ ही नहीं सके। जैसे एक्चुअली फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन है, आपने देखा होगा, राइट, कोई पढ़ नहीं बहुत ही सकता है। बेकार टाइप का डिस्क्रिप्शन है। राइट। हम्म। कोई पढ़ ही नहीं सकता है कि मतलब कुछ नहीं समझेगा वो क्या है क्या नहीं है, उसको कोई देखता भी नहीं है कभी, राइट। राइट लेकिन राइट अमेजोन पे ऐसा नहीं है। अमेजोन का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप HTML टैग्स वगैरह यूज कर सकते हो और प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हो। राइट। ओके, तो आपका जैसे कि इवन आप अगर आपका ब्रांडिंग भी कर रहे हो तो आपके ब्रांड रिलेटेड चीजें भी आप डाल सकते हो, कि मेरा ये ब्रांड है, ये इस ब्रांड का मिशन क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दो, और कुछ नहीं है आपके पास तो सो कोई जब इशू नहीं है उसमें। जब Amazon का एसईओ करते हैं हम, जब उसकी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी जो भी हम्म, वर्ड्स डालते हैं वो भी इंडेक्स होते हैं Amazon के एल्गोरिदम में, जब हम यस, कैंपेन्स रन करते हैं या सब ऑर्गेनिक। कुछ इंडेक्स होता है। यस यस, सब कुछ इंडेक्स होता है, फ्रॉम टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, देन आपके बैक एंड बैक सर्च एंड्स में टर्म्स, भी। सब ऐसा। बैक एंड सर्च टर्म्स जो है आपके सारे सो के सारे इंडेक्स होते हैं। मैंने भी काफी सारे सेलर से देखा हुआ है, बात किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से वो काफी ज्यादा छोड़ देते हैं और बैक एंड में जो कीवर्ड्स देते हैं हमको 250 कैरेक्टर्स वो भी कोई वो नहीं यूज नहीं चाहिए। करते।
उसमें भी गलत तरीके से काफी यूज करते हैं, जैसे कॉमा डाल देते हैं, हाइफन डाल देते हैं और पूरा का पूरा फ्रेज डाल देते हैं, जब फ्रेज डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका कीवर्ड उसके जो सिंगल वर्ड्स है खाली आपको वही डालना है बस, उससे ज्यादा आपको फ्रेजेस भी डालने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि जो बैकएंड सर्च टर्म्स है वो अमेजोन वैसे भी उसको तोड़ के यूज करता है, इंडेक्स करता है आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली। ओके, तो जब आप बोलते हो तोड़ के करता है तो बेसिकली क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो हमको इसका तोड़ मतलब? के मतलब मैंने एक्चुअली तोड़ के मतलब देखिए आपके जो आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो, देखिए आपका जो टाइटल है वो क्या है, एक टेक्स्ट है राइट। राइट। उसमें आपके वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं जो आप कीवर्ड्स बोलते हो। फ्रेजेस को नॉर्मली हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं, ओके। बट आपके जो वर्ड्स है वो भी एक तरह से कीवर्ड्स है अमेजोन के लिए, राइट। क्योंकि नॉर्मली कोई भी डेटाबेस कैसे काम करता है बैकएंड में कि वो सारे के सारे वर्ड्स पूरी लिस्टिंग के उठाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, बेसिकली स्पेस से तोड़ता है, वो स्पेस से डिवाइड करता है और फिर उसको इंडेक्स करता है, देखता है कि ये वर्ड्स के लिए ये जो लिस्टिंग है कितना रेलेवेंट है और इसके अगेंस्ट जो अमेजोन के डेटाबेस में कीवर्ड्स है वो कितने रिलेवेंट है ये लिस्टिंग के लिए, ओके। ओके। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है एक्चुअली, जो बहुत ही सिंपल तरीके से अमेजोन पे हो जाती है, जो हमको समझ में नहीं आती। अब जैसे कि कोई कीवर्ड्स है, जैसे लेदर शूज फॉर मेन या फिर ब्लैक लेदर शूज, ठीक है। उसमें हम लोग अगर लेदर शूज एक तरफ लिखे और ब्लैक को कहीं और लिखे, जैसे सेंटेंस के फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक लेदर शूज के लिए रैंक होता है, फर्स्ट पेज पे आता है। क्यों आता है वो? क्योंकि अमेजोन अंडरस्टैंड कर लेता है कि ब्लैक क्या है, ब्लैक एक कलर है, ओके, और लेदर शूज एक प्रोडक्ट है। तो वो ब्लैक और लेदर शूज का कॉम्बिनेशन देखता है कि कोई किस किस लिस्टिंग के लिए रिलेवेंट है और फिर बाकी फैक्टर्स के हिसाब से आपको रैंकिंग दे देते हैं। सो बेसिकली मतलब अगर कोई भी आपके कीवर्ड्स है उसके एटलीस्ट वन वर्ड तो कहीं भी अगर आपके लिस्टिंग में है या तो टाइटल, बुलेट, बैक एंड डिस्क्रिप्शन, तो आपके वो लिए इंडेक्स हो एल्गोरिदम से जाएगा। मिक्स करके कर लेगा, यस, ऑटोमेटिक यस, कॉम्बिनेशंस करेगा उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉम्बिनेशन करेगा। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट रेलेवेंट है कि नहीं है उस कीवर्ड राइट। के लिए। और कितने और लोग फिर बोलिए बोलिए। एक और चीज थी कैटेगरी। राइट। कैटेगरी को भी लोग बहुत मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, रॉन्ग कैटेगरी में राइट। ये कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो वो भी एक गलत है, क्योंकि कैटेगरी बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट अमेजोन पे एक बहुत इतना लेवल तक मैटर नहीं करता जितना फ्लिपकार्ट में करता है एक्चुअली। ओके। सो बट अभी अमेजोन एक लेवल तक मैटर। अब कितनी बार हमने ये भी देखा हुआ है कि कितने लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम होता है, उसमें बेस्ट सेलर का बैज भी इजीली मिल जाता है, तो वो लोग राइट, रॉन्ग राइट, कैटेगरी में डाल देते हैं। मिल जाता है। बट फिर वो उनका कंप्लेन आता है राइट। कि यार मेरा ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हो रहा है, मेरे एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहे, क्योंकि कैसा है कि अगर ट्रैवल हुक्स में आप डाल दोगे ट्रैवल क्लिप्स का, तो बेसिकली वो कीवर्ड्स उनके कैटेगरी के अंदर इंडेक्स ही नहीं होते, तो मैच ही नहीं होते लिस्टिंग में, तो कितनी इंडेक्स बार नहीं उस वजह होता, से भी उनका मैच नहीं प्रोडक्ट फेल हो जाता है। होता। राइट, राइट, ओके। राइट। और इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड रैंकिंग, आप थोड़ा बता पाओगे एग्जैक्टली कि ये कीवर्ड ट्रैकिंग कंपटीशन के कीवर्ड्स रैंक ट्रैक करना वो एग्जैक्टली होता क्या है, और आपका सॉफ्टवेयर किस तरफ से हेल्प करता है लोगों को इसमें? अच्छा, देख, पहले तो हम इंडियन सेलर्स अभी जो कि नए हैं तो पूरी तरह से, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को रैंकिंग चाहिए, देखना क्यों है, राइट। मतलब रैंक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट पेज पे कर रहा है या 10th पेज पे कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरा सेल्स कितना आ रहा है वो मैटर करता है सबके लिए। तो जवाब मांगते हो, बोलते सेल्स, सेल्स दिख रहा है। बट अगर जब आप आपकी लिस्टिंग बनाते हो तो आप कितने सारे एफर्ट डालते हो, आप सोर्सिंग करते हो, आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हो, आप इमेजेस शूट करवाते हो, एक एक इमेजेस के कोई 250 चार्ज करता है। कुछ ज्यादा भी करता है कोई कोई। आप बोल रहे थे वो लिस्टिंग ओके, बनाता है, तब सोर्सिंग हाँ, करता है, इमेजेस बनाता है। जैसे कि आप कितने सारे एफर्ट्स डालते हो इसके लिए, आप करते हो, लिस्टिंग बनाते हो, कीवर्ड्स रिसर्च करते हो, फिर
इमेजेस ऐड करते हो, राइट? और इमेजेस भी बहुत अच्छी वाली इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी आपको, राइट मिनिमम 5 to 6 इमेजेस ऐड कीजिए, ठीक है? उतने सारे एफर्ट के बाद आपको जब नहीं आती तो आप बोलते हो कि सारे एफर्ट्स वेस्ट चले गए, राइट? लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि जब आपने वो एफर्ट्स डाले उसका आउटपुट क्या आया एक्चुअली, ओके? जब मैंने इमेज बनाई, इमेजेस क्रिएट की, उसकी वजह से मेरे लिस्टिंग के रैंकिंग में क्या फर्क पड़ा, क्या उससे मेरा जो रैंक था वो बूस्ट हुआ है? यानी कि जैसे कि लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अमेजोन पे एक कीवर्ड के लिए ब्लैक लेदर शूज के लाखों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन को कितना रिलेवेंट लग रहा है, उस रिलेवेंस के हिसाब से उसने आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज या फोर्थ पेज या नेक्स्ट पेजेस पे डाल रखा है, वहां पे दिख रहा रहेगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन जब आपने आपके लिस्टिंग के इम्प्रूवमेंट के एफर्ट डाले तो वो एफर्ट्स की वजह से वो फिफ्थ पेज से फोर्थ पेज पे आया है कि नहीं, वो आपने चेक किया गया? अगर आपने चेक किया है तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये मेरा जो एफर्ट था ये पॉजिटिवली है, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ तो भी मुझे ये एफर्ट डालना चाहिए। तो मैंने जिस राइट। हिसाब से मैंने रिसर्च किया वगैरह किया, वो सारी की सारी चीजें। और बेसिकली इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि लोग मेजर नहीं करते। जब मेजर नहीं करते तो मालूम कैसे पड़ेगा एग्जैक्टली कि ये चीज वर्क कर मेजर रही है नहीं नहीं कर करते रहे हैं? तो अभी अगर एग्जैक्टली उन्होंने हो क्या कुछ है, नया चेंज राइट? किया। जैसे कि राइट। जो आपका वैसे वीडियो नहीं दिख रहा हाँ, ओके, अभी दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीडियो दिख रहा है, यू कैन आई थिंक मेरे कंटिन्यू यहाँ से, टॉकिंग। अच्छा मेरा दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो हाँ, जैसे नेक्स्ट एफर्ट जो लोगों का रहता है वो एडवर्टाइजमेंट पे रहता है। जब कुछ नहीं चलता है, सब कुछ ट्राई कर लेते तो एडवर्टाइजमेंट, बट एडवर्टाइजमेंट आपका जो ओके। ओके, जैसे एडवर्टाइजिंग के एफर्ट्स डालते हो आप, तो एडवर्टाइजिंग के एफर्ट्स डालने के बाद आपका आपका ऑर्गेनिकली रैंक जो है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो आप चेक नहीं करते। वो भी आपको मेजर करना चाहिए कि किस कीवर्ड्स के लिए, ओके? पहले नॉर्मली सब ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते, फिर मैनुअल कैंपेन चलाते, राइट? वो सब चीजें ठीक है, बट उसकी वजह से जो आपके रैंकिंग पे है वो क्या इफेक्ट गिरा है आपका? आप क्या मेजर किया आपने कि आपका रैंक इंक्रीज हुआ है या कुछ और नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है? कुछ भी हो सकता है, ओके? क्योंकि अगर इररिलेवेंट है आपका प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं, कन्वर्जन रेट्स अगर कम है, तो फिर हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इतनी बढ़ेगी भी नहीं। राइट। कन्वर्जन रेट्स भी बहुत मैटर करेगी बाद में, राइट? तो ये सब चीजें हैं, बेसिकली मेजर नहीं करते लोग चेक नहीं करते कि उनका कंपटीशन क्या कर रहा है। उनका कंपटीशन कुछ लिस्टिंग में चेंजेस करता है, इमेजेस चेंज कर रहा है, वो सब ट्रैक नहीं करते। फिर उसका जो रैंकिंग है और आपका जो रैंकिंग है, वो दोनों कैसे मेजरेबल है किसी कीवर्ड के लिए, कैसे अफेक्ट हो रहा है आपका? आपने जब ये एफर्ट्स डाले तो आपका सेकंड से फर्स्ट पे आया, लेकिन जो कॉम्पिटिटर था वो कहाँ गया? वो फर्स्ट पे है या सेकंड पे है? उसको कुछ अफेक्ट हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए, जब कोई आगे जाता है तो किसी को पीछे भी आना पड़ता है, राइट। ऐसा भी होता है, राइट? क्योंकि आपके पास स्लॉट्स कम है। अगर अमेजोन आपको डेस्कटॉप पे 48 रिजल्ट्स दिखा रहा है तो 48 ही रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको 100 रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो 48 में कोई ऊपर भी जाता है, कोई नीचे भी आता है, तो आपका कंपटीशन क्या कर रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए। सो जैसे अगर आप एक ट्रैवल पिलो बेच रहे हो तो बेसिकली आपके कीवर्ड्स होते हैं नेक पिलो, ट्रैवल पिलो, तो मुझे एग्जैक्टली चेक करना है कि मैं अगर कुछ भी चीज ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ या एड्स रन कर रहा हूँ या पिक्चर चेंज कर रहा हूँ तो मेरा पोजीशन क्या है वो रैंक का। अगर समझो मैं 10th पोजीशन हूँ, पेज नंबर 1, आफ्टर डूइंग द एफर्ट्स मुझे मालूम पड़ता है मैं पेज नंबर 1 के फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे आ गया हूँ, तो एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि यार ये एफर्ट्स मेरा पे ऑफ हो गया और मैं थर्ड पोजीशन पे आया और मेरी सेल्स इसीलिए बढ़ी, इसीलिए नहीं बढ़ी कि मैंने कुछ किया नहीं और इसीलिए पड़ी, अचानक से डिमांड आ गया। राइट? तो एक साइंटिफिक सडनली रीजनिंग मिलता डिमांड आ है। गई, राइट। तो एक साइंटिफिक रीजन मिलता है राइट? कि एग्जैक्टली ये चीज वर्क करती है, तो मैं हर चीज के लिए एक्चुअली यूज करता हूँ। और हम्म, कितनी बार ये भी होता है कि लोगों को सेल्स डाउन होते हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, उनको लगता है डिमांड चली गई, बट वो ये क्यों चेक नहीं डाउन करते हो हैं कि रहा ऑर्गेनिकली उनकी रैंकिंग कम होती है जा उनको? रही है। हाँ, तो ये चीज में भी आपका टूल काफी हेल्प इनकरेक्ट, करता है, राइट, 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 टू अंडरस्टैंड के राइट। अंडरस्टैंडिंग द बेसिकली थीसिस आपकी जो भी। प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है, हम्म। फेसेस भी है, राइट? राइट। रीजनिंग देता है बेसिक आपको कि कोई चीज चल रही है तो क्यों चल रही है और कोई चीज क्यों नहीं चल रही है। राइट।
सो अभी आपने मुझे बता दिया कि आपका टूल कीवर्ड्स ढूंढता है, ठीक है, आपका हम्म कीवर्ड ट्रैक करता है, और कौन से फीचर्स है आपके टूल्स में जो एक सेलर्स को जनरली यूज में आते हैं? जैसे एक ऑन पेज एसईओ करके फीचर भी हम लोग देते हैं, जिसमें हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग Amazon क्या करता है, कीवर्ड करता है और फिर उसको इंडेक्सिंग वगैरह करता है। तो राइट। जैसे हम लोग एक ऑन पेज एसईओ में मोस्ट यूज्ड कीवर्ड्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं। वो बेसिकली ये डिस्प्ले करता है कि आपकी जो पूरी लिस्टिंग है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, उसमें से सबसे ज्यादा रिपीटेड कीवर्ड्स कौन से, वर्ड्स कौन से हैं, नॉट कीवर्ड्स, वर्ड्स कौन से। इससे ओके। क्या होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना, जैसे कि आप लेदर शूज बेचे तो आपका लेदर और शूज, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड वर्ड्स है आपके लिए, तो वो सबसे ज्यादा रिपीट, उनका रिपीटेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, ना कि किसी और कीवर्ड वर्ड्स का। जैसे बहुत लोग फ्री वर्ड यूज करते हैं उनकी लिस्टिंग राइट। में, वो भी एक्चुअली नहीं यूज करना चाहिए। अमेजोन को अगर फ्री बहुत डेंजरस कभी कभी काम करता है, कभी कभी निगेटिवली अफेक्ट कर लेता है आपको, आपकी राइट। लिस्टिंग को, स्पेशली टाइटल में जब होता है तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग काउंट देते कि कौन कौन सा वर्ड्स जो है, क्या क्या काउंट है आपके पास। और लिस्टिंग एनालाइजर है, जो लिस्टिंग एनालाइजर बेसिकली बहुत सिंपली, अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स है, 50 प्रोडक्ट्स है, तो उसमें कहाँ कहाँ पे किस किस चीज में क्या चीजें मिसिंग है। जैसे कि टाइटल है तो टाइटल के हम लोग ये देते हैं, सजेशन देते हैं इनके लेंथ के बारे में, इमेजेस के बारे में, तो कौन कौन से चेक मार्क है, कौन सा क्रॉस है, उससे आपको इजीली एक ग्लैंस मिल जाता है कि ये वाले कि लिस्टिंग में ये इश्यूज है, फटाक से में जाके इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके। अच्छा। फिर एक रिवर्स एएसआईएन टूल है, जो हम्म। कि बहुत ही बढ़िया टूल है। वो हम्म। बेसिकली क्या काम करता है कि जैसे आपने तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च किया वगैरह किया, वैसे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी कुछ ना कुछ कीवर्ड रिसर्च करके रैंक करने का उसके प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है। तो रिवर्स एएसआईएन जो टूल है वो आपको ये दिखाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है अमेज़न पे। ओके। और उस कीवर्ड्स के वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी दिखाता है आपको। इससे आपको आपका जो कंपटीशन है, आपको क्लियर इमेज मिलता है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये क्या कर रहा है, कीवर्ड रैंक कर रहा है। फिर आपको आपके जो एफर्ट्स है, इधर थ्रू एडवर्टाइजमेंट और थ्रू एक्सटर्नल ड्राइविंग, एक्सटर्नल ट्रैफिक, और भी सारी चीजें हैं, वो उस डायरेक्शन में एफर्ट डालने चाहिए वो उस कीवर्ड्स के लिए, क्योंकि वो कीवर्ड क्या है, उसका सर्च वॉल्यूम भी है आपके पास, हम्म। राइट। और यानी कि ट्रैफिक जनरेट हो रही है, और उसके लिए आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है तो आप क्यों नहीं रैंक कर सकते, राइट। राइट। तो आपको आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करो या दूसरे एफर्ट्स है जो आपको डालने। राइट। ओके। तो ये रिवर्स एसिन तो उसमें भी काम आता होगा बेसिकली, कि हमको अगर कोई कीवर्ड्स टारगेट करने और हम लोगों ने शायद मिस कर लिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से ऑर्गेनिकली मिस कीवर्ड्स कीवर्ड, के लिए रैंक कर रहे हैं, तो हम भी वो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट? राइट। और वो राइट, कीवर्ड्स भी हम जो अपने आपका अगर, बेसिकली कंपटीशन है हाँ हाँ, राइट, बोलिए और बोलिए। और कभी हमारे वो कीवर्ड्स अगर हमने वो इंडेक्स नहीं किए हुए हमारी लिस्टिंग में, तब वो कीवर्ड्स हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? राइट, बेसिकली आपने जो कीवर्ड मिस कर लिए हो, राइट। ओके। तो मिस कीवर्ड्स के लिए भी हमारे पास लिस्टिंग बिल्डर है, एक टूल जो आपको हेल्प है कि आप कीवर्ड आइडिया जनरेटर जो हमारा टूल है, उससे पहले क्या करो कि सारे कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड निकाल लो, उसमें से सिलेक्ट कर लो आपके जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स है, उसको लिस्टिंग बिल्डर में डालो। और अगर आपका लिस्टिंग जो है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज, ऑलरेडी क्रिएटेड है या न्यू क्रिएट कर रहे हो, व्हाटएवर, आप वो लिस्टिंग इंपोर्ट कर सकते हो हमारे टूल में, ठीक है। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स सब आ जाएंगे। आपको आपके जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स उठा के लिस्टिंग बिल्डर में डालो, वो आपको बताएगा कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स के या फ्रेजेस के काउंट क्या है आपकी लिस्टिंग में। दूसरा, जो जो कीवर्ड्स है, जो वर्ड्स है, बेस कीवर्ड्स के सारे जो कीवर्ड लिस्ट बनाए ना आपने, हम लोग क्या करते हैं, वो सारे कीवर्ड लिस्ट में से सारे इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं वो उठा लेते हैं और उसका काउंट रखते हैं कि ये वर्ड्स का ये काउंट है, यानी कि राइट। उसका इंपॉर्टेंस उससे उससे पता चलता है काउंट से। ओके। राइट। देखिए, जो भी वर्ड ज्यादा बार रिपीट हो रहा है किसी लिस्ट में, यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके। राइट। तो वो उसका पूरा काउंट हम लोग रख लेते हैं। फिर वो काउंट जैसे ही आप आपका लिस्टिंग चेंज करोगे, वो वर्ड्स ऐड करोगे,
वो जो कीवर्ड है वो जो वर्ड है वो ग्रीन हो जाता है, यानी कि जो वर्ड है वो आपने ऐड कर लिया है। उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स जो है आपकी लिस्टिंग में मिसिंग है और क्या हम्म, क्या आपने ऐड कर लिया है। तो जो भी मिसिंग वर्ड्स है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। कुछ भी आप मिस नहीं करोगे कि मैंने कुछ मिस कर लिया या ऐसा कुछ कुछ मिस नहीं करोगे। आप जो भी दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में वो आपको राइट साइड में डालना है, बस राइट। सिंपली। सो जो भी बेसिकली आपके लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो बैक टर्म में डाल दो। कोई भी आपका ये टूल यूज करेगा, ऑन पेज एसईओ, लिस्टिंग बिल्डर, सो बेसिकली एकदम ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बना सकता है, राइट, आफ्टर कीवर्ड रिसर्च एंड यस, यूजिंग ऑल फुली द कीवर्ड्स। ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग बना सकते हैं। राइट, राइट। और ये इस डेफिनेटली आप कुछ मिस नहीं करोगे। राइट, एक एक और थियोरी है कि लोग बोलते हैं अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं रन कर सकते अनटिल आपका वो कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग में किधर ना किधर तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रोडक्ट है हम्म ट्रैवल पिलो और मेरे पूरे लिस्टिंग में किधर भी वर्ड ट्रैवल हम्म, नहीं है, तो मैं ट्रैवल पिलो वर्ड पे वर्ड नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट रन करूंगा तो भी इंप्रेशंस नहीं आएंगे। क्या इवन ये राइट है? इंप्रेशंस नहीं आएंगे। आप ऐड तो रन कर सकते हो लेकिन इंप्रेशंस नहीं आएंगे। आप ऐड रन कर सकते हो। ऐड का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि बाय बॉक्स आपके पास होना चाहिए, दूसरा कोई राइट, क्राइटेरिया नहीं। और ऑब्वियसली कि स्टॉक वगैरह होना चाहिए। ऑफ कोर्स। बट हाँ, ये जो चीज है कि अगर आपने वो कीवर्ड डाला ही नहीं है तो आपको इंप्रेशंस नहीं आएंगे। ये बहुत ही वैलिड है और फैक्चुअल है, क्योंकि आप अगर एक रोबोट्स के हिसाब से सोचते हो कि रोबोट को पता है कि ये कीवर्ड है ही नहीं इसके पास, तो ये रिलेवेंट होगा ही नहीं शायद, इसलिए इसने डाला ही नहीं है। राइट, अगर इसने राइट, डाला ही नहीं है तो फिर मैं इसको क्यों दिखाऊं मेरे को। राइट, कस्टमर को, अमेजोन को क्या करना है, अमेजोन को कस्टमर को बेस्ट चीजें देनी है, बेस्ट राइट, चीजें दिखानी है। राइट, वो ज्यादा से ज्यादा अमेजोन से बाय करे, सस्ते में बाय करे और फास्ट डिलीवरी ले। राइट। ये अमेजोन का टारगेट है और कुछ नहीं है। आपको ओके। और एक और आपका जो Amazon- तो आपको आपका हेलो। एक और टूल है जो आई थिंक हाईजैकर करके कुछ है, राइट, लाइक अलर्ट्स करके कुछ है। हाईजैकर अलर्ट। वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। हाईजैकर अलर्ट्स तो हम्म, अभी कैसा होता है कि जो सेलर्स आते हैं, भूखे रहते हैं कि जाने से, तो उसके लिए होता है कि दूसरों की लिस्टिंग जो है वो मैप कर देते हैं। उसका उन्होंने आपका प्रोडक्ट मैप कर दिया। राइट। सो बेसिकली वो रिकॉर्ड्स केस में आपको बोलिए सर। बोलिए। ओके, तो हाँ, सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लैगिंग का इशू है। आप बोलिए एक बार। हाँ, सो मैं ये बेसिकली पूछ रहा था कि हाईजैकर से आप फिर से एक बार समझाएंगे हाईजैकर एग्जैक्टली होता क्या है और आपका टूल उसमें क्या हेल्प करता है, राइट? ओके, तो हाईजैकर्स बेसिकली दूसरे सेलर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को मैप करते हैं। मैप करते हैं यानी कि क्या करते हैं कि आप ही के प्रोडक्ट के आप ही के लिस्टिंग पे बैठ जाते हैं और सेल करते हैं कम प्राइस में आपके प्रोडक्ट को। ओके, यानी कि लिस्ट आपने बनाई, इमेजेस आपकी, डिस्क्रिप्शन, सारी मेहनत आपकी, लेकिन उसका जो फायदा है वो कोई दूसरा सेलर उठा के चला जा रहा है। ऐसा हो जा रहा है अभी। राइट। ऐसे सेलर्स डिटेक्ट करना इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे सेलर्स क्या करते हैं कि एक दो घंटे के लिए आपका जो लिस्टिंग है वो मैप करेंगे, फिर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं अगर हाईजैकर हूँ, अगर मैं आपकी लिस्टिंग अगर हाईजैक करना चालू करूँ, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा कि मैं दो दो तीन तीन घंटे के स्लॉट्स में डेली आपकी लिस्टिंग मैप करूंगा और देखूंगा कि किस टाइम पे सेल्स ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर मैं वो टाइम पकड़ लूंगा और फिर वो टाइम पे आपका जो लिस्टिंग है वो मैप करने लगूंगा। आपको पता भी नहीं चला कि कोई लिस्टिंग मेरी मैप कर रहा है, क्योंकि शायद जब आप देखोगे तब तक कोई, ओके, और और तब तक सारा सेल्स जो है वो मुझे आ गया होगा। राइट। एटलीस्ट मैं मेजर सेल्स ले लूंगा आपका,
सारा सेल्स मैं नहीं लूंगा, क्योंकि सारा सेल्स अगर लूंगा तो आपको पता बहुत भी पड़ चल जाएगा। ओके, तो जाएगा। आपका टूल इसमें तो क्या वो भी हेल्प नहीं करता करना है मुझे। बेसिकली? मेरा जो टूल है हाईजैकर अलर्ट टूल, वो बेसिकली आपको अलर्ट्स देगा। जब भी कोई ऐसा हाईजैकर आता है और आपका लिस्टिंग मैप करता है, तो वो आपको अलर्ट दे देगा कि ओके ये हाईजैकर ने आपका ये जो प्रोडक्ट है वो मैप कर लिया। ओके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर है अमेजन रजिस्ट्री है ब्रांड रजिस्ट्री में, तो आप ब्रांड रजिस्ट्री में जाके उसको रिमूव कर सकते राइट। और एटलीस्ट आपको मालूम तो रहेगा कि आपके लिस्टिंग में बार बार कोई हाईजैकर आ रहा है, और आप उसका कुछ तो यूज कर पाओगे कि हो। आपकी सेल्स हाईजैकर आ इसके, रहा है, शायद आपकी सेल्स इसके लिए राइट। टैंक हो रही है, और आपको मालूम तो पड़ेगा कि इस वजह से सेल्स टैंक हो रही है, इसके लिए या तो आपको बैड रिव्यूज आपको आ रहे आईडी हैं। नहीं होगा कि राइट बैड रिव्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका ब्रांड एबीसी है, वो एक्सवाईजी कुछ भी बना के जेनरिक मार्केट से लेके आके बेच रहे हैं। तो आपके राइट कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा तो बोलेगा मैंने तो दूसरे ब्रांड का ऑर्डर किया था, वो लिस्टिंग पे जाके आपको निगेटिव रेट कर देगा। राइट राइट। आप सो और एक नेगेटिव रेटिंग भी अमेजोन पे काफी भारी पड़ जाती है कभी-कभी, सस्पेंड भी हो सकता है आपका अकाउंट, कि आपको अगर, स्पेशली अगर आपके कम, हाँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी दिखते हैं उसके, राइट। अगर आपको पता ही नहीं है तो। अगर आपने कुछ एक्शन ले लिया, पता चल गया तो अच्छी बात है। और आप, आपको क्या लगता है क्या एक डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल मतलब एक सेल्स के इम्पैक्ट ऑफ सेल्स, एक सेलर जो एक्चुअली पूरे सब चीज एसईओ, ये हाईजैक अलर्ट्स, कीवर्ड ट्रैकिंग, ये सारी चीजें करता है, और एक आदमी सिर्फ नॉर्मली प्रोडक्ट्स लाता है, पिक्चर भी लोकल करता है या तो चुरा देता है और सेल करने लग जाता है। क्या आपको लगता है सेल्स का डिफरेंस होता होगा इन दोनों में एज अ परसेंटेज? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है वो परसेंटेज। डाले बिना कुछ नहीं कर सकते, आपने से प्रोडक्ट डाल दिया बिकेगा ही नहीं। आप चाहिए तो ट्राई कर लो, जो भी नए सेलर है वो एक बार ट्राई कर लीजिए, प्रोडक्ट डाल दीजिए और कुछ मत कीजिए, उसको हाथ ही मत लगाइए, एक महीने तक कुछ सेल नहीं आएगी आपकी। आएगा तो एक दो ऑर्डर आ गए तो ठीक है, वरना वो भी नहीं आएंगे। राइट ओके और जो एक दूसरा सेलर है जो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करता है, उसको पता है कि मेरा ये कीवर्ड है, इसको मुझे टाइटल में डालना है, ये सेकेंडरी कीवर्ड है, इसको मैं बुलेट पॉइंट्स या डिस्क्रिप्शन में डालूं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब अमेजोन इंडेक्स करेगा, देखना प्रोडक्ट्स है तो उसको थोड़ा ट्राई देगा, उसको थोड़ी विजिबिलिटी देने का ट्राई करेगा। अगर आपने कीवर्ड्स डाले ही नहीं तो उसको आपको विजिबिलिटी किस बात की देगी, आप कुछ एग्जैक्टली रिलेवेंट हो ही नहीं अमेजोन के लिए, एग्जैक्टली। समझे। तो 90% तक डिफरेंस आ सकता है, 90%। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक सेल कर रहे हो तो इसमें ऑलमोस्ट 10 सेल्स करोगे अगर प्रॉपरली आप सब चीज कर रहे हो तो, यस, अप्रोक्सीमेटली। डेफिनेटली। ओके। और अगर आप मतलब कोई पर्सन को आपका टूल, मतलब समझो अगर एक नया सेलर, जैसे मैं एक नया सेलर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ये सब चीजें, तो अगर मैं आपका टूल के लिए साइन अप करता हूँ, तो मुझे इसमें ट्यूटोरियल मिलेगा एग्जैक्टली कैसे एक एक टूल क्या कैसे यूज करना है, कुछ लर्निंग मिलेगी? वीडियोस तो है, वीडियोस तो है ही। अगर आपको किसी से बात करनी है, लाइक चैट करनी है, तो भी आप हमारा लाइव चैट अवेलेबल ही रहता है। नॉर्मली मैं ही उस पर रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो नए सेलर्स हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ कुछ पता नहीं कि क्या है ये टूल, क्या किसको कैसे यूज करना है। तो नॉर्मली मैं कॉल्स भी अरेंज करता हूँ और डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ और बातें करता हूँ उनसे, राइट क्योंकि मुझे पता है कि इस पे एफर्ट डालना ही पड़ेगा, वरना नए सेलर्स को कुछ नहीं समझेगा कि ये राइट क्या चीज है। राइट। उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली वो कंफ्यूज हो जाएंगे एजुकेट ही करना नहीं क्या है। करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। राइट। इसीलिए आपके चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और आपका जो चैनल है वो स्पेसिफिकली अमेजोन एफपीए से रिलेटेड है, राइट तो आई थिंक आपका चैनल तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए ताकि उसको सारी चीजें समझ में आने लग जाए, राइट कीवर्ड रैंकिंग क्या होती है वगैरह वगैरह, काफी चीजें। राइट। सो अभी करंटली आप जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही है कि वो बड़े बड़े सेलर्स के लिए केटर करता है? हमने हमारा जो प्लान है ना, आप देखोगे हमारे पास 1000 से स्टार्ट होते हैं प्लान, एकदम 1000 ये इतना चीप प्लान है, इतना चीप प्लान है कि कोई भी नया सेलर, अगर कोई भी नया सेलर सेल करना चाहता है तो वो इजीली 1000 पर मंथ अफोर्ड कर सकता है, बहुत इजी। ओके, और हमारे जो हाईएस्ट प्लान है वो 10,000 तक भी जाते हैं। और अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो वो कस्टम प्लान्स भी लेती है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स के लिए करते हैं। बस कंपनीज है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो उनके क्लाइंट के लिए यूज करती है। स्पेसिफिकली उन लोग कीवर्ड रैंकिंग यूज करते हैं, कीवर्ड ट्रैकिंग। कीवर्ड रैंकिंग यानी चेकिंग के उनका रैंक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है पोजीशन वाइज?
चेक करने के मेजरमेंट, हाँ, रैंकिंग पोजीशन के सो लिए। आपने ये बोला डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो वो बेसिकली सारे क्लाइंट्स का डेटाबेस, मतलब सारे क्लाइंट्स का मैनेज करती है आपके सॉफ्टवेयर पे ही? राइट, उनके क्लाइंट्स होते हैं, जैसे उनके बड़े क्लाइंट्स होते हैं। कोई भी आप बड़ा ब्रांड ले लो, सैमसंग से लेके वीडियोकॉन, एसी वाले ओके, या राइट। कूलर वाले या कुछ भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स मैनेज करने होते हैं उनको। तो उनका भी टारगेट, उनका तो प्योर टारगेट सेल्स ही रहता है। राइट। तो जब उनका प्योर टारगेट सेल्स रहता है, तो वो सबसे पहला चीज जाके कीवर्ड ट्रैकिंग करते हैं, कीवर्ड का रैंक ट्रैक करते हैं कि ये ओके। कीवर्ड्स के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स है, क्लाइंट के जो प्रोडक्ट्स है, वो कहाँ रैंक कर रहे हैं। क्योंकि राइट। उनको पता है कि अगर मुझे रैंकिंग नहीं, अगर रैंक ही नहीं है, तो सेल्स आने का कोई सवाल ही नहीं। राइट। राइट। सो अभी ज्यादातर आपके पास डिजिटल मार्केटर्स है कि ज्यादातर अपने सेलर्स भी है छोटे वाले? राइट, एसपी सेलर्स भी है। सेलर्स, ऐसा नहीं है कि सेलर्स नहीं है। जो जिनको पता है, जिनको आइडिया है कीवर्ड रैंकिंग ट्रैकिंग क्या होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, वो डेफिनेटली यूज करते हैं। हम्म। वो प्रॉपरली यूज करते हैं, रिवर्स एसाइन वगैरह। उनको पता हम्म। है कि उनको ये यूज नहीं करेंगे तो बोलते हैं ना कि सेल्स पे कुछ अफेक्ट होगा ही नहीं अगर नहीं यूज करेंगे। तो वो ऑफ बहुत कोर्स। जरूरी चीज हो गई है एक्चुअली। राइट। सो बेसिकली अगर अभी अभी हमारे ऑडियंस को आपने एक लिंक बना के मुझे दिया है, बेसिकली अगर कोई भी ऑडियंस को आपके सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, उनको देखना है, तो उनको लिंक शेयर करना चाहिए, राइट? वो share कीजिए आप आपके ऑडियंस के साथ, और वो साइन अप कर सकते हैं। और अगर उनको कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम होगा, ट्रेनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेसिकली उनको, आपको अप्रोच कैसे करना है, लाइव चैट के थ्रू कि ईमेल के थ्रू? लाइव चैट के थ्रू और ईमेल के थ्रू, दोनों से आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप लाइव चैट के थ्रू भी करते हो तो भी रिप्लाई आएगा, और ईमेल से भी रिप्लाई आएगा, कोई इशू नहीं। ओके, ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड. So thank you, Mahesh. Really nice seeing you. You know, being in action. इतना difficulty होने के बाद भी नेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, उसके बाद भी आप एक इंटरव्यू पे आए और काफी ज्यादा हाँ, नॉलेज दिया काफी आपने. अनस्टेबल है। बट रियली थैंक यू. और मैं अभी थैंक यू लिंक, विरल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एक्चुअली, नो नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंड आई होप वी विल डू मोर वीडियोस इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स एक बार आपका नेट स्टेबल हो जाए तो हम प्रॉपर डेमो एंड एवरीथिंग भी करेंगे, कि यस, बहुत सारे प्रॉपर डेमो एंड राइट, कि राइट। बहुत सारे सेलर्स को प्रॉब्लम होता है. मुझे बार बार डीएम आते रहते हैं, यार मुझे ये बढ़ नहीं रहा है, मेरा सेल बढ़ा दो. इनको सब ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, मैं समझा नहीं सकता कि उनको ये सब चीजें यूज करनी है. जब मैं इनको पूछता हूँ एसईओ किया है, तो उनको एसईओ का राइट, मतलब मालूम नहीं पड़ता है, उनको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मालूम नहीं पड़ता है. मतलब नहीं पता। राइट, तो फिर वो सेल कैसे बढ़ेगी? पिक्चर्स भी मैं राइट, पूछता हूँ तो बोलते चुराए हुए हैं गूगल से. राइट। तो बेसिक चीजें ही राइट नहीं है, फंडामेंटल्स, तो कुछ कर नहीं सकते राइट उसमें. और बाकी भी राइट, सॉफ्टवेयर्स थे जो मैं उनको पूछ रहा था, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इंडियन सेलर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चाहिए जो इंडियन हो, तो उनसे बात कर पाए, सीख पाए. राइट। सेकेंडली प्रॉब्लम ये है कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, और सबके सब इंग्लिश में है. कितने लोगों को हिंदी समझ में नहीं, इंग्लिश समझ में नहीं आती है. सब इंग्लिश में। तो क्या हिंदी में कैसे किसी के थ्रू राइट, बात करके समझ सकते हैं एग्जैक्टली कैसे क्या करना है? समझ सकते हैं। राइट, राइट, राइट. और हमारे चैट पे या ऑफ कोर्स. हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग हिंदी से जो भी आप कंफर्टेबल है उसमें आपके राइट. साथ कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऑफ कोर्स. सो महेश जी, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू. और मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिख लूंगा, आपके लिंक विंक डाल दूंगा. ओके, और कोई भी हाँ, यूजर को अगर आपको रीच आउट करना है, तो फेसबुक पे आपका प्रोफाइल दे सकता हूँ मैं उनको? यस, फेसबुक बेस्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे सेलर्स फेसबुक पे अवेलेबल रहेंगे। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली. फेसबुक पे डायरेक्टली, या फिर कोई भी एम्स इंडिया प्रॉफिट के ईमेल आईडी पे भी आप अगर मेल डालते हो तो भी मुझे मैं रीच हो जाएगा, कोई इशू डेफिनेटली, डेफिनेटली. ठीक है महेश जी, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो नहीं। नाउ. थैंक यू विरल। बाय. या, श्योर।